آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز میں ہوئی ربنا سٹی صاحب جان چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے. روزمرہ اشیاء شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں. برائڈل گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی ہے. فارمینے طور پر مہنگی فی درجن قیمت 288 روپے مقرر کی گئی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے اور روزمرہ اشیاء شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، جبکہ برائڈل گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی ہے. فارمی انڈے 2 روپے مہنگی، فی درجن قیمت 288 روپے ہو گئی ہے. پنجاب میں افسوسناک واقعہ، شالم مارکیٹ کی پلازے میں خوفناک آتش زدگی سے لاکھوں کا سامان خاکستر ہو گیا ہے. 1 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد آگ بجھا دی گئی، جبکہ ریسکیو کی 10 گاڑیوں نے آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا. مارکیٹ کے پلازے میں خوفناک آتش زدگی، دوسری منزل پر گودام میں لگنے والی آگ 1 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد بجھا دی گئی. آگ کو پلازے کی دیگر منزلوں تک پھیلنے سے روک دیا گیا. شیشے کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص زخمی. پلازے کی تیسری اور چوتھی منزل پر رہائش پذیر خاندانوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا. ریسکیو کے تحصیل انچارج محمد رمضان نے بتایا کہ ریسکیو کی فائر فائٹر ٹیم اطلاع ملنے پر 4 منٹ میں پلازا پر پہنچی. 3:48 پہ ہمیں کال موصول ہوئی کنٹرول میں، اور ہماری LF4 فائر وہیکل جو ہے یہ اردو بازار میں اس نے رسپونڈ کیا اور الحمدللہ 4 منٹ سے بھی کم رسپانس ٹائم میں ادھر پہنچے. یہ فرسٹ رسپونڈر تھے. آگ کے انہوں نے سین سیس کیا، آگ زیادہ تھی 2nd فلور میں، اور انہوں نے فوراً آ کے کنٹرول کو انفارم کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا ٹیم ورک تھا اس میں ہم نے فائر کو آلموسٹ 1 گھنٹے میں مائنڈ اپ کر لیا. پلازا کی تاجر یونین کے رہنما سالک اشفاق نے بتایا کہ آگ لگنے سے گودام میں پڑا ہوا لاکھوں کا ڈیکوریشن کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی اسٹور تھا، یہ کوئی دکان وغیرہ نہیں تھی. وہاں پر ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اب یہ پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ شارٹ سرکٹ ہے کیا ہے، لیکن یہ پتہ لگے گا. اب تھوڑی دیر تک ہم اوپر جائیں گے دیکھتے ہیں، لیکن سامان جو ہے وہ سارا جل چکا ہوا ہے. اور میں ریسکیو کی ٹیم کو اس چیز کا خراج تحسین پیش کروں گا جو کہ 4 منٹ کے اندر شالم مارکیٹ میں، آج چھٹی والے دن یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے آ کے پورے پلازے کو کیا، ساتھ دائیں بائیں جو پلازے تھے ان کو بھی بچایا ہے. آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران پولیس اور ٹریفک وارڈنز نے پلازے کی طرف جانے والے تمام راستے بلاک کر کے ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا. آپ کی تعمیر و ترقی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان ہے. لاہور کے ترقیاتی منصوبوں میں ریکارڈ پیش رفت ہوئی ہے. شہر کی پہلی ٹورزم شاہراہ واہگہ ہیریٹیج کوریڈور کی تعمیر مکمل کر لی گئی. واہگہ ہیریٹیج کوریڈور کی تعمیر مکمل کر لی گئی. قائد اعظم انٹرچینج سے واہگہ بارڈر زیرو لائن تک 13 کلومیٹر طویل ٹورزم شاہراہ کی تعمیر. منصوبے پر اب تک 28 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ. سڑک کو اطراف سے چوڑا کیا جا رہا ہے. 68 فٹ چوڑی ٹورزم شاہراہ کے دونوں طرف 20 فٹ چوڑے سروس روڈز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. 22 کلومیٹر سے زائد طویل RCC ڈرینیج سسٹم کی بھی تعمیر. 10 کلومیٹر آرائشی دیوار کی تعمیر کے علاوہ جدید سولر اسٹریٹ لائٹس بھی نصب کی جا رہی ہیں. جنوری میں شروع ہونے والا منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے. ٹریفک میں روانی کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بہترین سفری سہولتیں میسر ہوں گی. شہری سفر کے دوران قومی ہیروز کے پورٹریٹس اور روشنیوں سے مزین آرٹ کے نمونے دیکھ سکیں گے. واہگہ ہیریٹیج کوریڈور شاہراہ پر اب تک 2850 ملین روپے خرچ کیے جا چکے. سڑک کی تعمیر اور نئے سیوریج نظام کی تنصیب سے اہل علاقہ کا دیرینہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور آپ کو بتائیں کہ موسم برسات کے دوران وبائی امراض کے پھیلاؤ میں اضافہ ہونے لگا ہے. شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ایک ہفتے میں ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے 6000 سے زائد مریض مانسون کے دوران وبائی امراض بڑھنے لگے. ڈائریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور ملیریا کے مشتبہ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ایک ہفتے میں ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے 6000 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. ہسپتال میں 1600 سے زائد مریض آئے. سروسز میں 1400، جناح ہسپتال میں 1200 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے. لاہور جنرل ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال میں بھی 1000 مریض رپورٹ ہوئے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کریں. مانسون میں ڈائریا کا پھیلاؤ عام ہے. پانی اور خوراک کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. گرہ فروشوں کی منمانیاں جاری ہیں. سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری ہے. مارکیٹ میں شملہ مرچ 260، بھنڈی 220، کریلے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں اور پپیتا 600، سیب 400، آم چونسا 380، کرما 220 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے. بتائیں عبدالقادر.
सब्जियों और फलों की, तो आज जो सब्जियों की सरकार ने मिल है ये बाजार की सब्जी की कीमत में इजाफा है। सब्जियां अब्दुल कादिर साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं गिरफ्त फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं, सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। मार्केट में शिमला मिर्च 260, भिंडी 220, करेले 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पपीता 600, सेब 400, आम चौंसा 380, गर्मा 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। तो आपको बता रहे हैं गिरफ्त फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं, सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। मार्केट में शिमला मिर्च 260, भिंडी 220 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इससे पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मार्केट में सब्जियां और फल जो हैं नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 60 रुपए किलो गया सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 90 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे देसी 200 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। करेले 150 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 140 के बरक्स 200 रुपए फी किलो, भिंडी 160 के बरक्स 220 रुपए और शिमला मिर्च 200 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में इसके बरक्स 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी यही है कि जो फल है वो सरकारी रिलीज में कीमतें कुछ और है और मार्केट में कुछ और कीमतें शहरियों से वसूल हो रही है। सेब गाचा 295 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 के बरक्स 250 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। गर्मा 160 के बरक्स 200 से 220 रुपए और आड़ू 300 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रिलीजों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त होना मामूल बन चुका है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि सरकारी रिलीजों के इजरा के बावजूद इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हर दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है, जिससे ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट में मुकर्ररा निर्ख पर चीनी के फ़रोख्त के मामला तय न पा सके। परचून में अक्सर दुकानों पर चीनी 180 से 150 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है और गड़ी शाहों में दुकानदार चीनी के फ़रोख्त से गुरेज करने लगे हैं। साहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। चीनी की दस्तयाबी का मसला बरकरार। मार्केट में सरकारी निर्ख पर चीनी फरोख्त कराने की इंतजामी कोशिशें जारी हैं, ताहम मार्केट में चीनी की मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त के मसाइल खत्म न हुए। मार्केट ज़राए के मुताबिक दुकानदारों को चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। होलसेल मार्केट में चीनी मुकर्ररा निर्ख 169 रुपए फी किलो पर न आ सकी। गड़ी शाहू समेत दीगर परचून मार्केटों में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो बेची जा रही है। ज्यादातर दुकानदार इंतजामी इक़दाम के खौफ से चीनी फरोख्त करने से गुरेज कर रहे हैं। इंतजामिया रोजाना सैकड़ों दुकानदारों को चीनी महंगी फरोख्त करने पर जुर्माना और गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में शुगर मिल्स से 165, होलसेल 169 और परचून में 173 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त पर मामला तय पाए थे। ताहाल होलसेल मार्केट में चीनी 169 रुपए फी किलो फरोख्त न हो सकी। परचून में भी चीनी की फरोख्त मामूल पर न आ सकी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। छुट्टी के रोज लाहौर के बासियों ने पंजाब सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी का रुख कर लिया। एक ही चीज़ के हर स्टॉल में अलग अलग रेट है। शहरियों का कहना है कि सहूलत सिर्फ यही है कि एक ही छत तले तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। अशिया की खरीदारी का मिशन शहरी बड़ी तादाद में पंजाब सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी पहुंच गए। सहूलत बाजार में हर स्टॉल पर एक ही चीज के अलग अलग निर्ख हैं। बेशतर दुकानदार बाजार वाले निर्ख ही वसूल कर रहे हैं। डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक 10 से 20% डिस्काउंट अमूमन यहाँ दस्तयाब नहीं। ना तो कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है और ना ही मियार में कोई नुमाया फर्क है। सस्ती अशिया मिलने का दावा सिर्फ कागजों तक महदूद है। सहूलत बाजार में सिर्फ ये सहूलत है कि एक ही छत के नीचे तमाम अशिया मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई सहूलत मौजूद नहीं। रेट थोड़े बेहतर है तो क्वालिटी भी ठीक हो। अब मैंने प्याज लिए, सारे दो मुंह हैं, गंदे गले प्याज हैं, ठीक होने चाहिए। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी और प्राइस तीनों ठीक होने चाहिए। सहूलत बाजार में सहूलत ये है कि हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है एक छत के नीचे। ये वाली फैसिलिटी जरूर मौजूद है, लेकिन इनको चाहिए प्राइस भी कंट्रोल करें। ये डीसी रेट का कोई फायदा नहीं है।
आप वो सब्जी मंडी चले जाएं, ये पास ही जो मंसूरा के अपोजिट है, तो वहाँ पे ये या इससे सस्ता जो है ना और फ्रेश, ये तो इनसे सबसे देखें आप जरा जाके गौर करें, ये 2 दिन कम से कम 2 दिन पुरानी सब्जी होगी और फिर भी इनका रेट जो है ना वो उनसे बराबर है या ज्यादा है। शहरियों का मजीद कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सहूलत बाजारों में अवाम को हकीकी मानों में सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। बड़े नामों के खिलाफ पंजाब इफ्तिखारी साहू कहते हैं पंजाब में 3,80,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात काश्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आम की क्वालिटी, पैदावार और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए 70 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दी है। महकमा ज़राअत के तहत आम की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए मुशावरती सेशन का इनेकाद किया गया है। मुशावरती सेशन में बागवानों, एक्सपोर्टर्स, माहिरीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में आम की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के लिए तजावीज़ तलब की गई। आम के बागवानों को दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा भी लिया गया। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। तक मियारी गोश्त दूध की फ्राहमी का मिशन है। वज़ीर आला के सख्त अहकाम जारी। चीफ सेक्रेटरी को सूबा भर में हर सूरत मियारी गोश्त दूध की फ्राहमी का हुक्म है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी की मुश्तरका टास्क फोर्स कायम और महकमा मुकम्मल अमल फौरी तैयार करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। गोश्त और दूध के आला मयार को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे चेकिंग को जारी रखने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और डीजी लाइव स्टॉक डॉक्टर अरशद की सरबराही में तमाम अजला के डायरेक्टर्स और फूड अथॉरिटी अफसरान की मीटिंग में तय किया गया है कि अफसरान पर मुश्तमिल टास्क फोर्स दूध और गोश्त की चेकिंग करेगी। 2 माह में पंजाब के तमाम डेयरी और पोल्ट्री फार्म्स की चेकिंग करके रिपोर्ट और तजावीज पेश की जाएंगी। तमाम मिसबा खानों की मौजूदा सूरत हाल और रिमॉडलिंग के हवाले से रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। खानों को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बनाने, जानवरों की प्री और पोस्टमार्टम के हवाले से लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। डीजी लाइव स्टॉक ने कहा कि टास्क फोर्स सरकारी और निजी मिसबा खाने चेक करेंगी, कसाबों को लाइसेंस जारी, फूड सेफ्टी और हाइजीन पर आगाही देंगी। बीमार, कम वजन जानवर या मुर्गी के ज़िबा करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानवरों और मुर्गियों की खिलाई जाने वाली फीड को भी आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि नाकिस गोश्त, दूध, सफाई और हाइजीन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मंजूर शुदा स्लॉटर हाउस के अलावा जानवर ज़िबा करने को गैर कानूनी स्लॉटरिंग तस्वुर किया जाएगा। हर 15 दिन बाद रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ब्रीफिंग में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई को जरूरी करार दिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे हासिल किए। वज़ीर आला के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब में खाद बिलखसूस DAP का इस्तेमाल बढ़ गया। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इकदाम का हुक्म। नवाज ने गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगी, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब के ज़हीन तलबा के लिए खुशखबरी है। होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मज़ीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पैगाम मज़ीद कहना था होनहार स्कॉलरशिप के अगले फेज़ के लिए पोर्टल मुकम्मल खुल चुका है। प्रोग्राम से 50,000 तलबा पहले ही फेज़याब हो रहे हैं, जबकि ये प्रोग्राम 67 फ्यूचर प्रूफ डिसिप्लिन्स में तलबा के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। स्कॉलरशिप की तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब में तलबा को वो सलाहियतें और मौके दिए जा रहे हैं जिनके नौजवान हकदार हैं। तलबा यकीन के साथ होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और शौक के साथ तालीम हासिल करें।
पंजाब की मैशत के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला के आज़म से पंजाब को बड़े कर्ज से निजात मिल गई। सेक्रेटरी ख़जाना मुजाहिद शेरदिल ने मुकामी बैंकों का 31 साल पुराना कर्जा भी ख़त्म कर दिया है, जबकि बैंक कर्जों का बाब भी बंद कर दिया गया है। अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। सेक्रेटरी खजाना पंजाब मुजाहिद शेर दिल की कमाल हिकमत अमली और जहानत रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने 1990 से 2022 तक गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब रुपए का कर्ज सिफर कर दिया। 2 साल कबल 25 करोड़ रुपए योमिया सूद अदा किया जा रहा था। अगर बर वक्त कर्ज अदा न किए जाते तो आज 50 करोड़ रुपए माहाना सूद की मद में अदा किया जाना था। पंजाब के खजाने पर 31 साल से बोझ बनने वाला कर्जा मुकम्मल अदा कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की कोशिशें कामयाब हो गयी। हुकूमती इक़दाम से सूबाई मैशत को इस्तेहकाम, कर्ज उतारने से सालाना अरबों की बचत होगी। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। कर्ज रूल ओवर की बैंकों की तमाम दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से कर्ज की वापसी से माली खुद मुख्तारी की नई मिसाल कायम हो गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अवाम के साथ साथ सूबे के माली हालात में तारीखी बेहतरी आ गई। सूद की मद में अरबों रुपए की सालाना बचत हुई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खजाने के बेहतरीन इस्तेमाल से सूबाई मैशत को नई जिंदगी मिली। कर्ज उतारने से पंजाब हुकूमत के मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा होगा। अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून पंजाब का वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद के इज़हार। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है, जबकि वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास, पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों का विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी की बदौलत पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। पार्लिमानी बोर्ड मौजूद उम्मीदवारों की मंजूरी देगा। पीटीआई तो ज़िमनी इंतखाबात से भाग गई है और उन्हें तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं, एक एक सीट के ऊपर 15-15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास में सदर राना सनाउल्लाह ने तमाम ज़िले ओहदेदारों को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियों की भी हिदायत कर दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए बड़ा ऐलान है। एक ही नौयत की माली बेसाबगी में मुलविस अफसरान पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला किया गया है और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल कहते हैं जिस पैरा को PAC3 ने निपटाया, अगर इस नौयत का पैरा दोबारा आ जाए तो अफसरान पर कार्रवाई होगी। एक ही नौयत की माली बेसाबगी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर बहस लाने के बजाय सरकारी अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। बेसाबगी में मुलविस अफसरान के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बार बार माली बेसाबगी सरकारी अफसरान की नहली तस्वुर की जाएगी। एक ऑडिट पैरे में हम 1 घंटा नहीं लगा सकते और कागज़ों के पलंदे उठाए नहीं फिर सकते। गफलत में मुलविस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 14 अगस्त को मार्का हक पार्क और म्यूजियम के नकाब कुशाई करेंगी, जबकि सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मार्का हक की फतह के जज्बे से सरशार कौम यौम आज़ादी तारीखी अंदाज में मनाएगी। सबसे ज़्यादा खूबसूरती से सजाए के बाजार को इनाम भी मिलेगा। ने आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 14 अगस्त को वज़ीर आला मरियम नवाज मार्का हक पार्क और म्यूजियम की नकाब कुशाई करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जश्न आज़ादी मिसाली अंदाज में मनाने की हिदायत की है। मार्का हक की फतह के जज्बे से सरशार कौम यौम आज़ादी तारीखी अंदाज में मनाएगी। आज़ादी फ्लोट्स का भी मुकाबला होगा। सबसे खूबसूरत फ्लोट सजाने और बेहतरीन चिरागा पर इनाम देंगे। सबसे ज्यादा खूबसूरती से सजाए गए बाजार को भी इनाम मिलेगा।
औरंगजेब ने मजीद कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के एहसास ने हसूल आज़ादी के जश्न को दुबाला कर दिया है। नौजवान और बच्चों का जोशो जज्बा काबिल तहसीन है। तालीमी इदारों और शहरी तंजीमों की जश्न आज़ादी से मुतालिक सरगर्मियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया और तमाम इदारे 14 अगस्त की तैयारियों में इश्तराकी अमल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने बताया कि जश्न आज़ादी की तकारीब को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब स्टेडियम में दिलचस्पी से CNW की बिल्डिंग सजा दी गई हैं। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद बर्द का कहना है कि 79वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। CNW के हेड ऑफिस और फील्ड दफातर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं सैनुलाबुद्दीन से। बताइए सैन। मुल्क भर में पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और खास तौर पर रात के औकात में जो सरकारी इमारतें हैं और प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर चिरागा नजर आ रहा है और इन बिल्डिंग्स को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। तो इसी तनाजुर में महकमा CNW की बिल्डिंग को भी पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया है। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की हिदायत पर महकमा CNW इस दफा 78वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मना रहा है। 78वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी तनाजुर में CNW के हेड ऑफिस और फील्ड दफातर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। हेड ऑफिस को रंग बिरंगी लाइट से भी रोशनास कर दिया गया है। मलिक सुहेब अहमद बर्द की तरफ से ये बताया गया है कि पाकिस्तान का कौमी परचम तमाम जो इमारतें हैं उनको लगाया गया है और 78वें यौम आज़ादी के मौका पर महकमा CNW की तरफ से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया जाएगा। सैनुलाबुद्दीन बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।